Very good morning, students. As in the last class we have studied about unification of Germany. So in today's topic we will study how the unification of Italy took place. So this is the topic of lesson number 1 of your history. Okay. So let's start how unification of Italy took place. So like Germany, Italy was also scattered in various states, or we can say small parts, and the complete Italy what we see today in the map, that was divided into small parts or small dynastic regions. Means at some place, some part, some other ruler was ruling, some another part, another ruler was ruling. So this was the situation which was taking place. Now what happens, as we see, अगर हम देखें क्या condition थी, during middle 19th century Italy was divided into 7 states, okay, of which only one was ruled by the Italian princely house, that was Sardinia Piedmont. Okay, अब इस चीज को समझो, 19th सेंचुरी के मिडिल में पूरा जो इटली था वो 7 अलग अलग रीजन्स में या 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, और उनमें से बस ये एक रीजन था जिसमें इटली का ही रूलर रूल कर रहा था, बाकी किसी भी पार्ट को, किसी भी रीजन को इटालियन रूलर रूल नहीं कर रहा था। और जिस रीजन को इटालियन रूलर रूल कर रहा था वो रीजन था सर्दिनिया पिडमोंट, मतलब ये वाला पार्ट। ओके, अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट जो इटली का था, वो रूल्ड किया जा रहा था किसके थ्रू? ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के थ्रू, मतलब हब्सबर्ग एम्पायर वाज डोमिनेटिंग देयर, एंड द मिडिल पार्ट वाज रूल्ड बाय द पोप, that was papal state, and the southern part of Italy and this complete area was ruled by the kings of Sicilies, or we can say the Bourbon kings of Spain. Okay, this was the division mainly. Again I am repeating, before the unification the Italy was divided into 7 major regions, and among those 7 only one was there which was ruled by the Italian princely house, or Italian ruler was ruling, which was Sardinia Piedmont. Okay, other classification is, we see the northern part of Italy was ruled by the Austrian Habsburg Empire, then middle part was ruled by the Pope, that was Papal state, and the southern part was dominated by the Bourbon kings of Spain, that was both kingdom of both Sicilies. This was there. Okay, now how this complete part unified we will see in this. So in these regions, as divided, as the Italy was, what we see today is divided under different regions. So at that time Italian language was also having many regional and local variations. Okay, बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल रहा था। इटालियन लैंग्वेज जो थी यहाँ पर कुछ और बोली जाती थी, ठीक है, प्रॉपर नहीं थी, यहाँ पर कुछ और तरह से यूज की जाती थी, यहाँ पर कुछ और, ओके, और रियल में यहाँ पे यूज हो रही थी। So we also saw that other than the division of the regions, the Italian regions was also having variation as according to the place. Okay, this way we have seen. Now we will see the main people who played a big role in the unification of Italy. अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये तो हमने बस इंट्रोडक्शन बताया कि बिफोर द यूनिफिकेशन व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इटली एंड हाउ इट वाज डिवाइडेड, हमने बस इतना देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ यूनिफिकेशन का, क्योंकि यूनिफिकेशन हुआ उससे पहले की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए ना। जैसे जर्मनी में आपने पढ़ा था, कुछ पार्ट फ्रांस के पास था, कुछ डेनमार्क के पास था, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो था हमने यही पढ़ा है कि यूनिफिकेशन से पहले इटली कैसे डिवाइडेड थी, कौन सा पार्ट इटली का किसके पास था। ओके, अब हम देखेंगे कैसे इसका यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन इज इनिशियली द रोल वाज प्लेड बाय जोसेफ मैज़ेनी, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। ही वाज अ ग्रेट Italian revolutionary and made secret societies for the unification of Italy, and many other programs was launched or movements were launched by him. इनको exile भी हो गया था, अगर आपको याद हो तो। In this chapter only we have studied about him. So during 18th
1930s जोसेफ मेज़ेनी पुट टुगेदर प्रोग्राम कोहेरेंट प्रोग्राम का मतलब होता है मिलकर, सब जिसमें साथ हो, ठीक है, जुड़े हुए हो। तो इन्होंने यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक फॉर्म किया एंड ही ऑल्सो फाउंड सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, दीज कैन बी आस्क्ड इन वन मार्क्स, पूछ लिया जाएगा। यूनिटरी इटली रिपब्लिक वाज फाउंड बाय whom? तो जोसेफ मेज़ेनी। Then it can be asked, Young Italy Secret Society was found by Joseph Mazzini. So he did efforts, okay, but क्या हुआ, हमने पढ़ा कि 1831 और 1848 में क्या हो गया, जो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुए उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। जैसे अगर हमारे कंट्री में बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च हुए थे ना बहुत सारे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, बहुत सारी वायलेंस हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके अलावा भी बहुत सारी रिवॉल्यूशंस हुई, चोरी चोरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग, तो बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, लेकिन उनसे क्या हुआ, हमारे कंट्री को फ्रीडम नहीं मिल पाई। लेकिन उन रिवॉल्ट्स की वजह से लोगों में एक यूनिटी आई, लोगों में एक क्या बोलते हैं, एक जोश आया कि हम क्या करेंगे, हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलवा के रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर की कंडीशन हुई कि जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स थी वो फेल्ड हो गई, लेकिन उससे लोगों में क्या आया, एक हिम्मत आई, एक साहस आया कि दे कैन go forward and revolt for the unification of Italy. So this we have seen. अब हम आगे देखेंगे कि अब ये जो सिचुएशन थी, रिवॉल्ट फेल्ड हो गया है, तो अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, the only one prince who was ruling the small part of Italy, that was island Sardinia Piedmont. अब इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जोसेफ मेज़ेनी तो है नहीं, ठीक है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस पर आ गई, किंग विक्टर एम्यूल, जो कि यहाँ के इटालियन प्रिंस थे। सर्दिनिया पिडमोंट अकेला ऐसा रीजन था जहाँ पर इटालियन रूलर रूल कर रहे थे, बाकी तो दूसरे दूसरे रूलर्स रूल कर रहे थे इटली पर, ठीक है। तो अब इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और ये थे यहाँ के किंग, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, किंग विक्टर एम्यूल सेकेंड। तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसको, यूनिफाई करने की इटालियन स्टेट्स को, और वो किस तरीके से, बाय वॉर, और कोई ऑप्शन नहीं था। और उनको ये जो सिस्टम था यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉर के थ्रू अचीव करना, इनको अच्छा भी लगा, क्योंकि इनका खुद का पर्सनल प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड था। ये सोच रहे थे कि ये एक अच्छा मौका है, अगर यूनिफाई हो जाएगा इटली तो इटली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और उससे उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल जाएंगे, मतलब पॉलिटिकली वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लेंगे, तो डोमिनेटिंग वो कंसिडर्ड होंगे पूरी इटली में। तो इनके पर्सनल प्रॉफिट्स इसमें इंक्लूडेड थे, वन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल टुक प्लेस ऑफ इटली, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड ही विल ऑल्सो अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो ये क्या करते हैं, ये फेवर करते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं और प्रोसीड करते हैं किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। अब इसके अलावा इनके जो चीफ मिनिस्टर कैवर थे, हमने अभी तक पढ़ा रोल ऑफ जोसेफ मेज़ेनी, जिसके एक तरह से एम को आगे ले जाया गया कि किसके, सर्दिनिया पिडमोंट रूलर या फिर इटालियन रूलर विक्टर एम्यूल सेकेंड के थ्रू, फिर आगे चीफ मिनिस्टर का रोल अब पढ़ रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर कैवर थे, वो अगर बात करें, ना तो एक रेवोल्यूशनरी थे, ना ही वो एक डेमोक्रेट थे, सॉरी। तो जो चीफ मिनिस्टर कैवर थे, वो ना ही एक रेवोल्यूशनरी थे, ना क्रांतिकारी थे, ना ही एक डेमोक्रेट थे, लेकिन उनके वो एक डिप्लोमेटिक पर्सन थे, मतलब उनके जो कहते हैं ना, सबसे बात बना लेते हैं जो लोग, एकदम उस तरह के लोग थे, ये पर्सन थे। और इनके फ्रांस से बहुत अच्छे रिलेशन थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह बोल लेते थे देन द इटालियन लैंग्वेज। और अपने इसी डिप्लोमेटिक अप्रोच, टैक्टफुल अप्रोच की वजह से इन्होंने क्या किया, फ्रांस की हेल्प लेकर, ठीक है, बिकॉज रिलेशनशिप इनके काफ़ी अच्छे थे, तो एक अलायंस फॉर्म कर लिया, और उस अलायंस के थ्रू ये सक्सेसफुल हो गए, या हम बोले कि सर्दिनिया पिडमोंट सक्सेसफुल हो गया क्या करने में, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट करने में 1857। अब देखो मैप में ऑस्ट्रियन फोर्सेस यहाँ पर है, यानी ये पूरा पार्ट अब किसके पास आ गया है, सर्दिनिया पिडमोंट के पास। यानी अगर बात करें तो ये तीन पार्ट थे, ये ऑलरेडी इनके पास था,
इटालियन रूलर के पास, विक्टर एम्यूल के पास। अब ये नॉर्थ वाला पार्ट जहाँ पर हाउसबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर यूज कर रहा था, वो सॉरी इस पार्ट को, तो ये पार्ट भी अब किसके पास आ गया है, इटालियन प्रिंसली रूलर या सर्दिनिया पिडमॉन्ट के पास अब ये सारा पार्ट आ गया है। ठीक है, बचे ये दोनों पार्ट। ठीक है, अब यहाँ तक हमने किस किस का रोल पढ़ा, जोसेफ मेज़ेनी एंड सर्दिनिया पिडमॉन्ट और उनके चीफ मिनिस्टर केवर का। अब हम आगे देखेंगे किसका रोल, जोसेफ गैरिबल्डी का। जो जोसेफ गैरिबल्डी थे, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमने पढ़ा था जोसेफ मेज़ेनी। तो जोसेफ गैरिबल्डी जो थे, इन्होंने भी जो ये पूरा रेवोल्यूशन चल रहा था, ये जो वॉर चल रहा था, इसको ज्वाइन कर लिया। कुछ इनके आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया जोसेफ गैरिबल्डी के साथ। प्लस में इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया लोकल पीजेंट्स का, और उनकी हेल्प से ये सक्सेसफुल हो गए सभी जो स्पेनिश रूलर्स थे। स्पेनिश रूलर्स कहाँ थे, इटली के सदर्न पार्ट में। तो इनको यहाँ से रिमूव करने में, डिफीट करने में, ड्राइव आउट करने में इनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा, लोकल पीजेंट्स का, आर्म वॉलंटियर्स का, प्लस जोसेफ गैरिबल्डी का। तो ये सब ने हम देखा, इन सब में ये सभी भी साथ थे। ओके, तो जोसेफ गैरिबल्डी और पीजेंट्स और वॉलंटियर्स, आर्म वॉलंटियर्स की हेल्प से क्या कर दिया गया, इस सदर्न पार्ट में जो स्पेनिश रूलर्स रूल कर रहे थे बर्बन डायनेस्टी के, उनको ड्राई आउट कर दिया गया, उनको निकाल के फेंक दिया गया प्लेस से। ठीक है, इसके बाद 1861 में क्या किया गया, सॉरी इससे पहले एक चीज और हुई। जब देखा गया कि नॉर्थ पार्ट भी अब इटली के पास है और ये वाला सदर्न पार्ट भी अब इटली के पास है, तो जो पोप थे इन्होंने खुद ही अपनी पावर्स को रिमूव कर दिया। मतलब इन्होंने सोचा कि ये मुझसे छीन लेंगे, उससे बेटर है कि मैं अब यहाँ पर रूल तो कर नहीं सकता, ठीक है, दोनों तरफ से मुझे परेशान किया जाएगा, तो अगर मैं खुद ही अपना मतलब पावर्स इनको दे देता हूँ, अपनी पावर छोड़ देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर है, ना कि ये मुझे मतलब नीचा दिखा के या मेरे साथ वॉर करके मुझे हरा कर वो करना पड़े। तो ये खुद ही पहले सरेंडर करते हैं कि ठीक है आप लोग रहो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, सच काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर। तो अभी मिडिल पार्ट में किसका हो गया, सर्दिनिया पिडमॉन्ट रूलर का। तो इसके बाद क्या होता है, 1861 में जो विक्टर एम्यूल सेकंड रूलर थे, याद करो ये रूलर कहाँ के थे, इटालियन प्रिंसली हाउस के, सर्दिनिया पिडमॉन्ट के। तो इनको क्या कर दिया जाता है, इनको एम्यूल सेकंड को वहां का कंप्लीट यूनिफाइड इटली का रूलर डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज और इसमें बताई है कि जो ये सदर्न पार्ट था इटली का, ये वाला पार्ट, इसमें क्या था, इलिटरेसी, मतलब बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, और बिल्कुल एकदम ना पढ़े लिखे कहो या अनपढ़ लोग आप कह सकते हो। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि जब नारे लगाए जाते थे, नारे इन द सेंस इटालिया इटालिया ऐसे करके नारे लगाए जाते थे ना, तो उसका मतलब होता है इटली। जैसे अगर हमारे कंट्री की हम बात करें, स्वतंत्र भारत ऐसे करके जब आज़ादी या फ्रीडम के टाइम नारे लगते थे, वैसे ही वहाँ पर इटालिया इटालिया करके नारे लगते थे, यानी वो यूनिफाइड इटली चाहते थे। तो जब गैरिबल्डी को सभी लोग ये बात सुनते थे, गैरिबल्डी के साथ जो लोग थे वो बोलते थे, तो कुछ लोगों को वहाँ पर ऐसा लगता था कि ला इटालिया क्या है, विक्टर एम्यूल की, जो विक्टर एम्यूल किंग थे कहाँ के, सर्दिनिया पिडमॉन्ट के, उनकी वाइफ है, और ये जो बर्बन किंग्स है उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया, इनको बंदी बना के रख लिया है। ठीक है, कैप्चर कर लिया है। तो उसको छुड़ाने के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, ला इटालिया या इटालिया के नारे लगा रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बता रखी है कि सदर्न पार्ट जो था इटली का, जो रूल किया जा रहा था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के थ्रू, वहाँ पे इलिटरेसी का लेवल इतना ज्यादा हाई था। वो एक एग्जाम्पल से शो किया है कि जब भी नारे लगाए जाते थे किसके, इटालिया इटालिया, जिसका मीनिंग था इटली। ओके, तो उसको इन लोगों को ऐसे समझ में आता था कि शायद यहाँ पर जो किंग एम्यूल सेकंड है सर्दिनिया पिडमॉन्ट की, उनकी वाइफ को बर्बन किंग्स ने बंदी बना के या कैप्चर करके रखा गया, और उसको छुड़ाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इटालिया इटालिया वॉइस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि ला इटालिया क्या है, वाइफ है एम्यूल सेकंड की, जो कि बर्बन किंग्स ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी हुई है। नाउ
The more important thing is that understanding this topic from the point of view of examiner. आपको क्या कर दिया जाएगा, दो तरह से क्वेश्चन इसमें बनकर आ सकता है. फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. वो आप एक्सप्लेन कर दोगे 5 to 6 पॉइंट्स में जैसे आपको बताया गया है, कोई इशू नहीं है. पहले फर्स्ट लाइन में बता देना कि कैसे क्या कंडीशन थी, ठीक है, ऑलरेडी बिफोर द यूनिफिकेशन. फिर आप एक एक का रोल बताते जाना. एक एक का रोल मतलब जोसेफ मेज़ेनी ने क्या रोल प्ले किया, फिर किंग विक्टर एम्यूल ने, फिर चीफ मिनिस्टर कैवर ने, फिर जोसेफ गैरिबल्डी ने. इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे और लास्ट में उनको क्या 1861 में एम्यूल विक्टर एम्यूल सेकंड को डिक्लेयर कर दिया गया पूरी इटली का यूनिफाइड इटली का रूल है, ये बता दोगे. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि कितने लोगों का रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के पीछे, हाउ मेनी पीपल प्लेड रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या पूछ लिया जाए एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए तब आपको पहले क्या कंडीशन थी वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं है कुछ भी इससे रिलेटेड. आपसे तो लोगों का पार्टिसिपेशन या लोगों का रोल पूछा है बस, जिन्होंने रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में. तो आपका आंसर स्टार्ट होगा इस तरीके से. फर्स्ट पॉइंट डालेंगे आप जोसेफ मेज़ेनी, सबसे पहले उन्हीं का रोल था, तो आप बता देंगे उन्होंने यूनिटरी इटली रिपब्लिक फॉर्म किया, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की, उनका रिवॉल्ट वैसे तो फेल हुआ लेकिन लोगों में एक इंस्पिरेशन या एंकरेजमेंट आई कि दे विल डू द वॉर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई. फिर किसका, इसके बाद आप बताओ विक्टर एम्यूल सेकंड थे कौन. पहले तो ये जो ओनली प्रिंसली स्टेट जो रूल किया जा रहा था इटालियन रूलर्स के थ्रू, उसके रूलर सर्दिनिया पिडमोंट के. उसके बाद बता दोगे कि अब इन्हीं के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, और इन्होंने ये इसमें इंटरेस्टेड भी हुए. क्यों, क्योंकि इसमें इनका पर्सनल गेन इंक्लूडेड था. इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करने से मुझे पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल जाएगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इटली की वो भी इंक्रीज होगी. इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर कैवर के बारे में बताओगे, पहले इनका इंट्रोडक्शन दे दोगे कि नाइदर डेमोक्रेट नॉर अ पर्सन, नॉर अ रिवोल्यूशनरी. उसके बाद डिप्लोमेटिक अप्रोच थी, फ्रांस से रिलेशंस अच्छे थे तो उनकी आर्मी के हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को नॉर्थ से भगा दिया और कैप्चर कर लिया गया. ये पार्ट भी अब किंग विक्टर एम्यूल के थ्रू. फोर्थ आप रोल बता दोगे जोसेफ गैरिबल्डी की, पीजेंट्स की सपोर्ट से, आर्म्स के सपोर्ट से इन्होंने रिवोल्यूशन ज्वाइन कर लिया और जो ये था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, इनको भगा दिया. ठीक है, तो ये बात आप चारों बता दोगे और इसमें फाइनली लास्ट में लिख देना यूनिफाइड के रूलर किसको बना दिया गया 1861 में, विक्टर एम्यूल सेकंड को. बस इतना ही बताओगे और कुछ भी नहीं बताओगे. तो आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है. मैं बार बार यूनिफिकेशन पे फोकस इतना क्यों दे रही हूँ कि आपकी बुक में 3 यूनिफिकेशंस है. इटली का यूनिफिकेशन है, जर्मनी का यूनिफिकेशन है एंड ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है. एंड ऑल द 3 आर इम्पॉर्टेंट. हम एक भी किसी को ऐसे नहीं मान सकते कि ये तो आ ही नहीं सकता है. यूनिफिकेशन 3 है, एग्जामिनर कोई भी दे सकता है. ठीक है, ज़्यादा चांसेस है 5 मार्क्स में, लेकिन वही कहते हैं ना कोई श्योरिटी नहीं है. 3 मार्क्स में भी वो आपसे कुछ पॉइंट्स पूछ सकता है. जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें इस तरीके से क्वेश्चन कि जोसेफ मेज़ेनी और किंग विक्टर एम्यूल या चीफ मिनिस्टर कैवर का क्या रोल था. 3 मार्क्स में ऐसे करके पूछ लिया जाएगा. इवन एक के बारे में पूछ सकती है, चीफ मिनिस्टर कैवर का यूनिफिकेशन में क्या रोल था इटली के. ठीक है, तो ऐसे करके पार्ट्स में डिवाइड होके भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स में. ओके, नाउ अदर देन दिस आपको 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है. हमने 5 मार्क्स की बात कर ली, 3 मार्क्स की बात कर ली इस टॉपिक से, अब 1 मार्क्स की बात कर ली. आपसे पूछ लिया जाएगा जोसेफ मेज़ेनी कौन थे, यू शुड नो. ओके, पूछ लिया जाएगा किंग विक्टर एम्यूल कौन थे, फिर चीफ मिनिस्टर कैवर कौन थे, फिर जोसेफ गैरिबल्डी कौन थे. तो ये सारी चीजें आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है. कब विक्टर एम्यूल को यूनिफाइड इटली का रूलर बनाया गया 1861 में, सच काइंड ऑफ थिंग. ला इटालिया के बारे में कुछ पूछ लिया जा सकता है. ठीक है, तो लोगों को क्या लगता था वहां के कि दैट वाज विक्टर एम्यूल्स वाइफ. ओके, उनको कैप्चर कर लिया गया है सच. फिर जोसेफ मेज़ेनी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, कौन सी बनाई ये आपको पता होना चाहिए. फिर ओनली द वन प्लेस विच वाज रूल्ड बाय बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय इटालियन रूलर्स, सर्दिनिया, पिडमोंट. Such kind of things should be very clear to you. So other than this,
what you will do today, you will make notes of the topic. Left it, I will give question, those questions only you do. But such unification topic of every part, Germany, Italy, you should read very properly, understand the topic, read the topic well, and do the questions based on this. Thank you very much. In the next video we will see about the unification of Britain.